और आप पढ़े लिखे रहेंगे तो अंबेडकर साहब का वो कथन याद रखिएगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो आपको हर हाल में शिक्षा लेना है। So this is a numerical of power. This is a numerical of power calculation. You need to calculate the power. The question is in front of you. You have the question. Question आपके पास है. इसमें डेटा दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? Data. What is the data given? There are two girls. What are the names of those girls? A and B. So you have girl A and girl B. The mass of girl A and the mass of girl B is not given. See in the question. किलोग्राम में कुछ दिया है क्या तुम्हें? नहीं दिया. You are not given anything in kilogram, but you are given something in Newton. आपको न्यूटन में कुछ दिया है. तो न्यूटन क्या होता है आपके पास? Force. That means F is given to you. And what is F? It is said it is a weight. ये क्या है आपके पास? वेट है बेटा. किसका वेट है? गर्ल्स का वेट है ये. तो वेट ऑफ गर्ल A is equal to weight of girl B is equal to 400 Newton. Whenever you are given something in Newton, that is a force. जब आपको कुछ न्यूटन में दिया होगा तो वो क्या मिलेगा? फोर्स है. और फोर्स वेट ही होता है. उल्टा भी बोल सकते हो, वेट क्या होता है? फोर्स होता है. किलोग्राम दिया होता तो मास होता. वहां तुम ग्रेविटी मल्टीप्लाई करते और वेट निकालते. क्या निकालते? वेट. तो अभी आपके पास दिया हुआ है क्या? वेट. देयर आफ्टर इन्होंने बोला है कि ये दोनों गर्ल्स जो है ये रोप क्लाइंब करती हैं. और कितनी हाइट तक जाती हैं? 8 मीटर, 8 मीटर. दे क्लाइंब अ रोप एंड रीच अ हाइट ऑफ 8 मीटर. अच्छा, हाइट कितना दिया है? 8 मीटर. 8 मीटर हाइट को चढ़ती हैं और दोनों गर्ल्स अलग अलग समय लेती हैं. The girl A takes how much time? Was there time taken by girl A? 20 seconds. And what is the time taken for girl B? 50 or 15? 50, 50 seconds. So you can see that girl B is taking more time. Yes, sir. So she must be having less power. यदि टाइम ज्यादा लिया जा रहा है तो पावर कम होनी चाहिए. पर अपन को कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा ना. साइंस में, फिजिक्स में हवा हवाई बात नहीं होती. You need to calculate everything. तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या होता है? If we calculate the power of girl A, what is the formula for power? Work upon time. That means work done. इसको अपन ऐसा लिखेंगे, work done by girl A divided by time taken by girl A. Now see here, what is the formula for work? Force into displacement. That means F by girl A into displacement by girl A divided by time of girl A. Now what is the force of girl A? That is weight of girl A. 400 multiply how much she is climbing upward. कितना ऊपर चढ़ रही है? 8 मीटर. तो you will multiply 8 meter divide by what is the time she is taking? How much time? 20 seconds. 20s. See, 0 and 0 will cancel out each other. 2 1 ja 2, 2 4 ja 8, 4 4 ja 16. That is 160 Newton meter per second. And this is called what? What? So this is 160 WATT. What? This is the power of girl A. तो गर्ल A ने कितना पावर लगाया? 160 watt. Note it down fast. Similarly, you can calculate the power of girl B. करो, जल्दी करके बताओ. Yes, sir. Okay, so this is question number 11.7 on page number 155 in your NCERT. Power of girl B. कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला बेटा अप्लाई करो. PB is equal to कितना होगा? Work done WD by girl B divided by time taken by girl B. Okay, now what is the formula for work? Again force into displacement. कार्य का फॉर्मूला क्या है? फोर्स into displacement. वर्क का force by girl B displacement by girl B divide by time by girl B. Yes, sir. गर्ल B ने कितना फोर्स लगाया?
मल्टीप्लाई कितनी ऊंचाई पर चढ़ी डिवाइड बाय कितना समय लिया. Now put the values. Some of the values are I think same, just like force. Force दोनों गल का सेम था, दोनों का वेट सेम था, उसी को वो ऊपर खींच रही है, रस्सी चढ़ा रही है. तो here you will have 400 न्यूटन. दोनों 8 मीटर ही चढ़ रही हैं तो 8 मीटर. The only difference is of time, that is 50 सेकेंड. 0 से 0 खत्म करो, है ना. 0 से 0 गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 8 जा 64. So you will have 64 Newton meter per second. That is 64 क्या? Watt. This is the power of girl B. So who is having more power? Girl A. So you will say in mathematical operator way, you will say PA is greater than PB. And in the statement form you will write something. What you will write? आप लिखोगे कि hence the power of girl A is greater than the power of girl B. There is an electric bulb. Electric bulb, how many watts are there? 60 watt. 60 watt का एक electric bulb है. Every day it is operated for 6 hours. The working time for that bulb is 6 hours. And thereafter each day how much unit it will consume. एक दिन में कितना यूनिट्स लेगा, और 30 डेज का मंथ है यदि वो, तो पूरे एक महीने में कितना यूनिट बनेगा, और जितना यूनिट बनेगा उसके हिसाब से अपन को क्या कैलकुलेट करके बताना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल. यदि उस एरिया में, उस क्षेत्र में एक यूनिट की कीमत कितनी है, 7 रुपए. देखो यहां पर इलेक्ट्रिक बल्ब you have, and it has some power. What is the value of power given? Power is equal to 60 watt, WATT. So this is the electric bulb which is having 60 watt of power. 60 watt का इलेक्ट्रिक बल्ब है, 60 watt का. इसका रन टाइम कितना है, एवरीडे रन टाइम कितना है, तो टाइम पर डे हाउ मच इट इज, 6 hours. 6 hours. Thereafter it is said the month days कितने हैं, 30 days are there, 30 days. और यूनिट कॉस्ट कितना है उस एरिया में, यूनिट कॉस्ट is ₹7. Now you will see per unit कितना होता था, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल. लास्ट क्लास में अपन ने देखा था. 1 यूनिट किसको कहते हैं, अपन बोलते हैं 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल. और इसका न्यूमेरिकल, इसका फॉर्मुलेटिव एक्सप्रेशन क्या होता था, इसका फॉर्मूला क्या होता था, किलोवाट आर. क्या होता था, किलोवाट आर. ये कब मिलता था अपन को, जब अपन किलोवाट आर को किस में बदलते थे, जूल में. लास्ट क्लास में देखा था आपने. तो किलोवाट और आर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना यूनिट मिलता है, 1 यूनिट. वॉट कितना है, 60. इसको किस में बदलोगे, किलोवाट में. तो आप देखिए यहाँ पे अपन की यूनिट पर डे कितनी आएगी. तो यू विल से हियर पर डे यूनिट, एक दिन में कितना यूनिट ये बल्ब खाएगा या फिर जलाएगा. तो किलोवाट, तो अपन रखेंगे 60 वॉट, 60 बाई कितना कर दो, 1000. सो इट विल बी नाउ इन किलोवाट. यू आर गिवन द वैल्यू इन वॉट, यू कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट. Thereafter multiply by hours. तो hours तो डायरेक्ट दिया है, कितना, 6 hours. It is 6 hours. Now you will see 0 and 0 cancel. ठीक है. Now you have 6 6 जा 36. 36 by 100. What is this? This is kilowatt hour. That means kilowatt hour को आप क्या बोलते हो, यूनिट. So you will have 36 by 100 watt. Complete करना है क्वेश्चन ना. 36 by 100 unit. How many days you need to calculate the total bill?
30 days. You will multiply it by 30. So you will have like this. 36 by 100 into कितना? 30. 0 0 cancel. Now 36 into 3 divide by कितना? 10. What is 36 into 3? कितना होता है? 108. So you will have 108 divide by what? 10 unit. Now 108 by 10, what is this? 10.8 unit. That means per day, that means in 30 days, in a month, एक महीने में कितना यूनिट चलेगा? और एक यूनिट का कॉस्ट बेटा कितना है तुम्हारे पास? 7 रुपीज. तो महीने का बिल कितना आएगा? टोटल बिल इज इक्वल टू हाउ मच? 7 मल्टीप्लाई 10.8. अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? जल्दी बताओ. 75.6 इन रुपीज. हर महीने वो बल्ब का बिल जो आपके मीटर में जुड़ेगा वो अप्रोक्सीमेटली 75 रुपए, 75 रुपीज के आसपास आएगा उस अकेले बल्ब का. ऐसे आप घर में कितने सारे इक्विपमेंट चलाते हो, उन सबका बिल एड अप होके इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनता है 500, 600, 1000 लाइक दिस. क्लियर है? तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास, है ना? क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? चलो बाकी नेक्स्ट में करेंगे. तभी तो उस आदमी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है. जब तुम लड़ोगे तो पढ़ोगे कहां से? लेकिन जब लड़ोगे तब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा. कहते हैं किसी को बर्बाद करना है तो उसको नफरत सिखा दो.